My dear students of second year, I am Raghavendra Pratap and I am here again with another content of third unit. I'll try to complete this unit in this video attempt. Please share your views on the pattern of using both the languages for the comfortability of you people. Please, one thing more which is very much important actually, please don't just ignore the silent threat of coronavirus as it never shout when approach. Please be safe and protected, stay at homes and break the chain. Okay, so we'll start with the rest content of third unit. So this is the first one where I'm moving my cursor, point number 6, steps in presentation process. So whatever we discussed in our previous video, that was all about something presentation and all the different aspects which can affect it more effective, which can make it more effective and audience centered, so that you can leave a better impression with the information which you are sharing. पिछले वीडियो में हमने काफी चीजें जानी, प्रेजेंटेशन प्रोसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जाना, हर एक चीज को समझने की कोशिश की. कुछ चीजें और हैं जो प्रेजेंटेशन के प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगी, तो उनको डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज स्टेप्स इन प्रेजेंटेशन प्रोसेस. सो देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स व्हिच आइडियली एवरीवन शुड टेक before giving or deciding a presentation. So these 3 steps are where I'm moving cursor. First one is planning, second one is process, and the third one is execute. यदि मैं गलत नहीं हूं, if I'm not wrong, all of you do know what planning means something which you are doing as a preparation in advance, means you are not yet indulged in showing the action, but you are planning how to do that action, how to do further actions to perform some tasks. Process, something in which you are indulging yourself actively to make a kind of outline, final summary, and ultimately executing, means where you perform real something which you plan. So these 3 basic steps are very much necessary to decide before the presentation. So understand these all 3 one by one. Planning. What are the things which comes under the planning section? The first one is analyze purpose. It is very much important when you are giving a task to present something. It is very much important for you to analyze your purpose. If you are not yet decided the purpose of that presentation, you won't be able to deliver that perfectly. Is it clear? Second one is the layout. Under the same section, analyze purpose, layout, and audience. It is very much important to decide your layout. Layout is a kind of like you are deciding how deep you are going to explain. Layout एक तरीके का वो कैसा देखेगा. लेआउट हम जनरल तौर पे बात करते हैं, लेआउट कैसा है मींस दिखने में कैसा है. सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ दिखना. लेकिन यहां पर लेआउट इज ऑल अबाउट समथिंग विच यू आर लाइक गिविंग अ काइंड ऑफ बाउंड्री लाइन टू योरसेल्फ. उसका लेआउट कैसा होगा मींस सारी चीजों को सेटल करना, मींस अ काइंड ऑफ सेटलिंग ऑल द थिंग्स. मींस यहां पर थिंग्स की जगह आएगा थॉट्स, ऑल द थॉट्स प्रॉपरली सो दैट यू कैन लीव अ बेटर इंप्रेशन. एंड द थर्ड वन इज ऑडियंस. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एनालाइजिंग ऑडियंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज it directly affects your presentation. Second point under the same section as planning, investigation of needed information. Yes, very much clear, very much real. The information which you have, the thoughts which you have, the ideas which you have as a information to share with some people, share with the audience. If it is necessary to get more and more information about that, to investigate every single point on that information, you should do that. This is very much important and comes under the section of planning, because no one is perfect in any subject. Even when someone is called expert of that thing, it is very much needed to prepare in advance, to investigate something more and more. So this 2 is important. And the third one means third important points, which is the part of same
as planning presentation to achieve the target. Decide to achieve the targets, decides the levels, decide the points which will help you out to achieve the targets. So these three things which are separately introduced under the section of planning. I'm moving cursor here. These three things which are put under the section of planning properly. So these three must be achieved by every presenter. Second one is the process. Process means the next stage of planning. When you plan, now you are processing. So under processing, organize content systematically. The content, the information which you decided in under planning section, now you are preparing that. Finally, you are arranging that all systematically so that it can leave a very much good impression. It looks fantastic. It looks fine to listen. It looks fine to follow. That is all about the process. And the third one, the other content of other thing of the same section process, compose presentation with its introduction, explanation and end. यदि मैं गलत नहीं हूं, हमने इसे पहले भी डिस्कस किया था. Whenever you are delivering a public speech, you are giving a presentation in the classroom, or you are giving a presentation in the business world, or anywhere wherever you are giving a presentation, it is very much must to divide your presentation into three different parts. First one is introduction, where you introduce the topic. Explanation, where you elaborate the topic which you introduce. Means explanation to the explanation is all about the elaboration which you are giving to the introduction. And the third one is and. Ultimately at the last you are leaving the final impression to get the knowledge retained by the audience more at the maximum level. ज़्यादा से ज़्यादा वो retain कर पाए, इसके लिए आप summing up करते हो, summary end में देते हो, conclusion देते हो. That is the way. So process must be as with these points. And the third one is execute. Execute का मतलब उसे चरितार्थ करना, means उसे पूरी तरह perform करना. So what are the things which are important? Proofread. Proofread means whatever you prepared, just proofread once or twice to remove all the ditches, to remove all the wrong things from there. Proofread is all about with respect to the spelling, with respect to the grammar, with respect to everything whatever you prepared, which can leave, which cannot which cannot show the command over that. That is all about the proofread. Second one is under the same section execute, that is produce. Produce means something which you plan. You are processing that in real, means plan and process. Plan which we decide under this action, and we are processing that. That is all about the produce. And ultimately executing, revise and a practice. Revise and a practice something which you plan and decide the process of that thing. So these three were the steps of presentation process. We are moving to the next slide. This is 7 steps to successful presentation. What these 7 steps are actually. जैसा जैसा हम steps लेते हैं, वैसा वैसा हमारा जो purpose होता है वो achieve होता है. So here I gave a outlook so that you can understand what steps you are taking, and because of those steps which you took, which you are going to take, what purpose you will achieve with that. Again I am saying, जो steps आप ले रहे हैं, the steps which you are taking, what purpose those steps will help you out to achieve. कौन कौन से उद्देश्य वो steps आपको मदद करेंगे लेने में. So one by one देखते हैं. These are the 7 steps considered by all over the world as is. Decide the objective. If you decide the objective, this is a kind of first step. यदि आप ऐसा लेते हैं, अपना objective decide करते हैं, in that case, that objective helps you out to achieve the purpose of concretize your idea. Concretize your idea means वो उसे मूर्त रूप देता है. यदि आप objective decide करते हैं, तो the purpose which you achieve, the purpose you achieve, that is concretize your idea. आपका idea concretize होता है, मूर्त रूप लेता है. Style of presentation as a step. As a step, you take
Again, I'm saying the style of presentation, if you take as a step, it helps you out to decide to achieve the purpose as meet the demand of the audience. यदि आप स्टाइल डिसाइड करते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टाइल किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. सो यदि आप अपना स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन डिसाइड करते हैं, इट हेल्प्स यू आउट टू मीट द डिमांड ऑफ द ऑडियंस. ये ऑडियंस की डिमांड को अचीव कराता है एज अ पर्पस. यदि आप अपना मोड डिसाइड करते हैं, मोड मीन्स मैनर, याद कीजिएगा हमने डिसाइड किया था, हमने अंडरस्टैंड किया था, गो थ्रू किया था इसको. If you decide your mode of presentation, it helps you out to secure the attention of receiver. आपके receiver की attention को आप secure करते हैं. If you take a step to prepare your script, preparation of script means if you prepare a script as a step to take, it helps you out to achieve the confidence in the presentation as a purpose. ये आपको अचीव कराता है आपके पर्पस के तौर पे आपके कॉन्फिडेंस को, यदि आप प्रेपरेशन करते हो स्क्रिप्ट की पहले से ही. इन प्रायर प्रेपरेशन ऑफ विजुअल हैंडआउट्स, यदि आप अपने विजुअल हैंडआउट्स को प्रिपेयर करते हैं, हैंडआउट्स को प्रिपेयर करते हैं एज अ स्टेप, in that case that helps you out to achieve the purpose to increase retention, organize properly and bring perfection. These three things achieved as a purpose if you prepare your visual handouts prior as a step. rehearse यदि आप अपने as a step आप अपनी presentation का rehearsal करते हैं regularly, you practice that, it achieves the perfection. ये perfection achieve करता है and ultimately presentation और execute, जो आप final presentation देते हो या उसको perform करते हो, that helps you out to share ideas as a purpose, that helps you out to share information as a purpose, that helps you out to share knowledge as a purpose. ये ultimately 7 steps थे जो presentation में हम लेते हैं, और because of those 7 steps what thing we achieve as a purpose वो हमने जाना. आगे बढ़ते हैं. The next point, 7th point is essential of presentation. What are the things which are essential in presentation? But हम पहले भी essential of presentation जान चुके हैं, पढ़ा था, लेकिन that was with some other relativity. Now this is with some other understanding. So retention of the audience, इंटरेस्ट, ऑडियंस का इंटरेस्ट हम किस तरीके से अचीव कर पाते हैं एज एसेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन. दोबारा बोल रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग रिटेंशन ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस का रिटेंशन ऑफ ऑडियंस इंटरेस्ट, ऑडियंस के इंटरेस्ट को कितना रिटेन कर पाते हैं एज एसेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन. देयर आर 3 थिंग्स essential of presentation as a retention of audience interest. There are 3 things. The first one is verbal content. verbal content means जो हमने शब्द और फॉर्मेशन यूज किया है, means the words which we are using and the formation which you are giving to the words as sentences. So वो 7% out of 100% achieve the retention. ये 7% अचीव करता है ऑडियंस का रिटेंशन, ओनली 7%. प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूं, भाषा का प्रयोग यदि हम अपने प्रेजेंटेशन में करते हैं इफेक्टिवली, द वर्ड्स विच वी यूज इन आवर प्रेजेंटेशन, द फॉर्मेशन विच वी यूज इन आवर प्रेजेंटेशन, that gets the attention, that gets the retention of the audience interest up to 7% only. Next one is voice modulation and articulation. जो हम वॉइस के साथ खेलते हैं, वॉइस के साथ खेलते हैं means the different aspects and features which we use to make the sound or a language more effective, and with that we articulate the words properly, we articulate the sounds properly, that leaves an impression of 38% to the audience. वो 38%, इसको सीधी भाषा में यदि समझें तो जो हमारी टोन होती है वो 38% इफेक्ट डालती है ऑडियंस के इंटरेस्ट पर. एंड अल्टीमेटली the last thing, body language, जो 55%, 55%, again I'm saying 55% credit goes to body language to get the audience interest, to retain the information which is shared by the presenter. Is it clear? So these are the 3 content, very much important. These are the 3 points which are very much important as to get the audience interest
to retain something which you are sharing in your presentation. Okay, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट. हम अपने कंटेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें. दिस टू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यदि हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने का तरीका सीख लें, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, तो वो एक अट्रैक्शन लेता है. इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल यहां मैं देना चाहूंगा. यू मस्ट हैव गेट सम स्टूडेंट्स, गेट सम मेट्स हु रेगुलरली क्रैक्स द जोक. ऐसे कई दोस्त या आपके क्लासमेट्स होंगे जो जोक्स क्रैक करते हैं, लेकिन ओनली फ्यू ऑफ दे अचीव द पर्पस टू गिव यू अ लाफ्टर. उनमें से कुछ ही लोग आप अपना पर्पस अचीव कर पाते हैं, आपको लाफ्टर मींस आपको हंसी देने का. हर कोई नहीं कर पाता. सो द सेम थिंग, कुछ लोग उसी जोक को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, दे प्रेजेंट द सेम जोक इन सच अ वे कि वो इफेक्ट डालता है, वो आपको लाफ्टर देता है. अदरवाइज कुछ लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाते और अंत में हमें पूछना पड़ता है द लास्ट वी जनरली आस्क, खत्म हो गया क्या. सो इसको जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट. एडिक्वेट मटेरियल मेक्स द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव. वी नो दैट. हम यदि जो मटेरियल, जिस मटेरियल मींस जिस नॉलेज को हम शेयर करने वाले हैं, उसको लेके जितना भी मटेरियल हमने, जिस इंफॉर्मेशन को हम शेयर करने वाले हैं, उसको लेके जितना भी मटेरियल हमने रिसर्च किया है, फाइंड आउट किया है, प्रिपेयर किया है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है प्रेजेंटेशन में. सो फॉलोइंग आर फ्यू थिंग्स which a speaker should take into consideration before organizing the content. ये कुछ चीजें नीचे दी हुई हैं जो हम जानने वाले हैं वन बाय वन, जो बहुत ज्यादा अफेक्ट डालती हैं और हर एक स्पीकर को अपने संज्ञान में, मींस अपनी नॉलेज में इस चीज को लेना चाहिए, इनके ऊपर कैसे वर्कआउट करना है. सो वन बाय वन जानते हैं विच विल हेल्प यू आउट टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट इफेक्टिवली. द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मैसेज. मींस हमारी इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन किस पर्पस है. सपोज फॉर एन एग्जांपल, इफ सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, इज इट क्लियर? आई एम गिविंग एन एग्जांपल. आप में से कुछ बच्चे गेट की प्रिपरेशन करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बीटेक. जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, सिर्फ वही इस इंफॉर्मेशन को किसी के द्वारा ग्रैब कर पाएंगे जो उनको गेट एग्जाम की डेट बताता है, यदि वो सोचते हैं या उन्होंने सोचा है कि वो गेट को प्रिपेयर करेंगे, गेट एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे. मगर समवन हु नेवर थॉट ऑफ टू प्रिपेयर गेट एग्जामिनेशन और टू क्वालिफाई गेट एग्जामिनेशन, उनके साथ यदि इंटेंसिवली इंटेंसिवली विथ फुल एफर्ट इस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, तो उनके लिए किसी भी स्तर तक वो यूजफुल नहीं होगी, बिकॉज दे वर नेवर थॉट ऑफ टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन. उस इंफॉर्मेशन को उनके लिए कोई यूज नहीं है. दैट इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ मैसेज. उस इंफॉर्मेशन का क्या नेचर है, किस तरीके की प्रकृति है कि वो किस तरीके का इफेक्ट लीव ऑन करेगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑडियंस एनालिसिस. हम इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं. कंटेंट डिसाइड करने से पहले ऑडियंस का एनालाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू मेनी थिंग्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑडियंस एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू डिसाइडिंग और ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट. यदि हमें वो पता होगा तभी हम अपने कंटेंट को इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे. ऑडियंस सेंटर्ड प्रेजेंटेशन. वन थिंग which is applied to every presentation, whatever kind of presentation you are giving in the classroom, as public speaking, as simple speaking, in the business world or anywhere, it is very much important. The information, the knowledge, the idea which you are sharing is centered to the audience. मतलब audience के मतलब का हो, उसके इर्द गिर्द ताल्लुक रखता हो उससे. That is the third point. Fourth point is choice of approach. Choice of approach is all about how much time or what kind of method you are going to use. दोबारा बोल रहा हूं, आप कितना टाइम आपके पास है ताकि आप उस चीज को कन्विंस कर पाएं, अपनी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली शेयर कर पाएं, और उसका क्या पैटर्न आप अपनाना चाह रहे हैं. मींस आप लेंदी, आपके पास प्रॉपर टाइम है एंड आप जिसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उनके पास भी प्रॉपर टाइम है. सो यू आर टेकिंग अ काइंड ऑफ अप्रोच, लॉन्ग अप्रोच. यू आर टेकिंग अप्रोच ऑफ ब्रीफनेस. यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल पॉइंट टू द audience. You are going to describe something which you understood with your own experience. So this is a choice of approach which helps to organize the content. Next one is, and almost the last one as well for the organizing content, choice of visual aid. ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है.
विजुअल एड। आप अपने कंटेंट में किस तरीके का विजुअल एड की मदद लेना चाहते हैं? अपने कंटेंट में किस तरीके के विजुअल एड्स की मदद लेना चाहते हैं, यह भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ऊपर शेयर की हुई चीजें। यदि आप विजुअल एड की मदद ले रहे हैं इन योर प्रेजेंटेशन टू शेयर सम कंटेंट विद द ऑडियंस, यू आर सपोज टू चूज द विजुअल विच आर अट्रैक्टिव, विच आर रिलेटेड टू। आप वहां पर ऐसा ही विजुअल एड्स लेंगे जो वहां पर रिलेट कर पाए, जो अपना इंप्रेशन as per the audience analysis which we got वहां पर अपना इंप्रेशन छोड़ पाए। Just 1 second only. Okay, we are moving to the next slide. The steps to organize content. यहां पर हमने जाना था organizing content. There are some steps which will help us how to organize the content step by step. इसमें introduction is important, body part is important, close is important. So there are 3 different points under organizing content. First one समझने की कोशिश करते हैं, introduction. So what is this organizing content and the steps? Arousing interest of the audience. Audience के interest को जगाना, that is with the help of the content. हम कई और चीजों की भी मदद लेते हैं ऑडियंस के इंटरेस्ट को जगाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक इफेक्टिव नहीं होती टिल द टाइम द इंफॉर्मेशन विच यू आर शेयरिंग विद दम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल, हमने एक बहुत प्यारी डिश प्रिपेयर की, ऊपर से दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे वेदर इट्स अ वेज और नॉन वेज। इन दैट स्टेट उसका जो आपने आउटलुक देखा उसकी वजह से आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे एज अ कोर्स ऑफ मील खाना चालू करते हैं, जैसे ही आपको पता चलता है दैट इज नॉट ऑफ योर बिलोंगिंग एरियाज, मींस यदि आप वेज हैं तो वो नॉन वेज है, सो इन दैट स्टेट यू लीव दैट देन एंड देयर, आप वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली ये वही उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन है। एरोजिंग ऑडियंस इंटरेस्ट, इन ऑडियंस का इंटरेस्ट लंबे टाइम तक जगा के रखने के लिए कंटेंट ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, दूसरी चीजें जो हमने प्रेजेंटेशन में डिस्कस की वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी आई एम सेइंग दे टू आर इंपॉर्टेंट, बट every different aspects leave and gets a particular percentage to show the impression. हर चीज अलग अलग परसेंटेज रखती है प्रेजेंटेशन में। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट से द अदर एस्पेक्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू गिव इफेक्टिव प्रेजेंटेशन 100%, नो, हर चीज अपना अपना एक पर्टिकुलर परसेंटेज रखती है। सेकंड पॉइंट अंडर द इंट्रोडक्शन, विनिंग द ऑडियंस फेथ। ऑडियंस के फेथ मीन्स एक विश्वास होता है, उसके फेथ को ग्रैब करना। फेथ मीन्स द कंटेंट यदि आप शेयर कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, इफ एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एक्सट्रीमली सॉरी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका एग्जांपल ले रहा हूं, इफ ही इज शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस इन दैट स्टेट, दिस इज अ काइंड ऑफ फेथ आप उनके ऊपर ऑटोमेटिकली रखेंगे जो इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, इवन व्हेन ही शेयर्ड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आप उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। सो जो इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं आप उसको ऑडियंस के फेथ के साथ आपका जोड़ना जरूरी है, क्योंकि तभी आप उसको जीत पाएंगे ऑडियंस के फेथ को। आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंटेंट की डीप रिसर्च, ये सारी चीजें मिलकर आपका ऑडियंस का फेथ अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज प्रीव्यूइंग द प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू करना मींस प्रेजेंटेशन प्रीव्यूइंग इज ऑल अबाउट प्रीव्यू द कंटेंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के तौर पे हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट में बॉडी पार्ट। व्हाट इज दिस बॉडी पार्ट? याद कीजिएगा हमने 3 चीजें डिसाइड की थी। इंट्रोडक्शन, हर चीज में, हर प्रेजेंटेशन में 3 चीजें होती हैं, यहां पर कंटेंट में भी 3 चीजें हैं। जब हम कंटेंट देते हैं तो इंट्रोडक्शन करना, इंट्रोडक्शन का बेसिक पर्पस अभी हमने डिसाइड किया, वो ऑडियंस का इंटरेस्ट रेज करता है, ऑडियंस का फेथ गेन करता है, और प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू देता है। इंट्रोडक्शन एक प्रेजेंटेशन जो आप देने वाले हैं, इट इज अ काइंड ऑफ प्रीव्यू, गिव अ प्रीव्यू टू द ऑडियंस, एक प्रीव्यू देता है। आगे बढ़ते हैं, बॉडी पार्ट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, जहां पर आप प्रेजेंटेशन का अगला पार्ट शेयर कर रहे हैं। मींस यू आर गोइंग टू इलैबोरेट समथिंग विच यू इंट्रोड्यूस अंडर द फर्स्ट स्टेप, इंट्रोडक्शन में जो आपने इंट्रोड्यूस किया वो आप इलैबोरेट कर रहे हो। सो
that must be prepared to grab attention more to the introduction. Introduce जो आपने किया है उसके बारे में और ज्यादा attention grab करने के लिए. So these things should be briefed in following order. ये इस तरीके से follow करना चाहिए. कुछ different order हैं, कुछ different techniques हैं जिसकी मदद से आप अपने elaboration को connect कर सकते हैं, अपने elaboration को perform कर सकते हैं. So first one is inductive. ये यहां पे कुछ स्टेप्स हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वेश्चन टू आंसर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड कॉज एंड इफेक्ट. ये कुछ मिलता जुलता याद कीजिएगा पैराग्राफ राइटिंग से है. हालांकि वहां पर पैराग्राफ राइटिंग को लेके था, यहां पर हम उन्हीं पैटर्न को यूज कर रहे हैं. ये प्रेजेंटेशन में भी अपना पार्टिसिपेशन पूरी तरह शो करते हैं. सो इंडक्टिव ऑर्डर को जानते हैं, व्हाट इंडक्टिव ऑर्डर ऑफ एक्सप्लेनेशन इज. इन इंडक्टिव ऑर्डर, author moves from a particular statement to a general statement. When you are giving, means anyone as a presenter giving a presentation, if he moves from a very much particular statement to a general statement, it will be called an inductive order. But if a presenter is moving from a general statement to a particular statement, it will be called a deductive order. And if a presenter is asking some questions and giving the answer of those all, or getting the answers from the audience, that is a way, that too is a way of elaborating, raising interest in the presentation of the audience. So that is called question to answer order. In it, as I said, here author starts with questions and answers. Answers can be given by him or by the audience. Next one is chronological order. It's an order which follows a particular sequence of time for the explanation with the content, with the time, whatever. Means ultimately it follows a sequence. एक sequence follow करता है. And the last one is cause and effect. Cause and effect. In order to explain cause and their effect on a situation, this too is a way. यहाँ पर हम कारण और उनके effects को शेयर करते हुए प्रेजेंटेशन को देने की कोशिश करते हैं. सो जब हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, सो इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेनेशन, द सेकंड पार्ट which are named here as body, and the last one is closing. Closing is the final part where we conclude with the content in our presentation. So इसको भी जानते हैं. Closing of a presentation is as important as introduction. Closing उतनी ही important है जितनी एक introduction. Introduction जिस तरीके से attention grab करता है, जिस तरीके से attraction grab करता है audience का, closing उसी तरीके से retention fix कराती है उस knowledge का जो आपने share की है. So closing, a perfect closing, effective closing gets the retention of the knowledge which is shared with the audience, with the public. So here are a few points to summing up and presentation perfectly and effectively. कुछ यहाँ points हैं जो मदद करते हैं closing को बहुत अच्छे ढंग से करने की, ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो पाए, रिटेंशन अच्छा हो पाए जो इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है in the mind of the audience. First one is plan to give about 10% of your total time to the ending. कम से कम at least 10%. यदि आपने 1 घंटा प्रिपेयर किया है तो 1 घंटे का 10% आपको हर हालत में देना है अपनी एंडिंग को, क्योंकि यही टाइम आपको अल्टीमेटली आपके पूरी प्रेजेंटेशन को रिटेन कराता है. सेकंड पॉइंट इज क्लोजिंग मस्ट बी डिस्क्लोज टू द ऑडियंस विद फ्रेज लाइक in conclusion, to sum it up, with my final words. जब भी कभी आप क्लोजिंग करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की, आप उसको हाईलाइट करेंगे इन सच अ वे विद द हेल्प ऑफ सम फ्रेजेस, ताकि सामने वाले को पता चले कि आप अब क्लोजिंग कर रहे हैं. यू आर समराइजिंग, यू आर कंक्लूडिंग योर प्रेजेंटेशन with the phrases in conclusion, to sum it up, with my final words, or whatever you feel to leave such impression that you are closing, that you are concluding. Next one is restate your main points at the end with more stress. जिन main points को आपने highlight किया, the main points which you highlighted in your presentation, you are supposed to highlight those all points with less number of words and very much concisely. बहुत छोटे रूप में आपको उनको restate करना है, दोबारा कहना है.
रिव्यू द कंसेंसस ऑफ द ऑडियंस। कंसेंसस का मतलब, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं जिस वर्ड को कर्सर मूव कर रहा हूं, कंसेंसस का मतलब होता है जनरल अग्रीमेंट। रिव्यू द कंसेंसस ऑफ द ऑडियंस, जिस इंफॉर्मेशन को आपने शेयर किया है, क्या उस इंफॉर्मेशन के ऊपर सभी ऑडियंस की एक सी राय सहमत हो पाई है या उसमें कुछ मतभेद है। इफ यदि मतभेद नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, योर प्रेजेंटेशन इज वेरी मच ग्रेट। बट वेयर लैकिंग ऑफ कंसेंसस, लेकिन जो इंफॉर्मेशन शेयर की उस पर सारी ऑडियंस एक मत नहीं है, सो एंड बाय सेइंग something like we seems to have some fundamental disagreement on, or it looks to have two different ways of understanding। आप इन phrases की मदद से उस lack of consensus को explain करेंगे, lack of consensus को share करेंगे। लैक ऑफ कंसेंसस, जनरल एग्रीमेंट जो है, जो जनरल राय है, जो एकमतता है, उसको आप डिस्कस करेंगे, उसको आप बताएंगे कि यस वी ऑल आर नॉट एट वन पॉइंट विद वन कंसेंसस, आप इसको ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइंग टू मेक योर फाइनल वर्ड्स मेमोरेबल। जो आप अपने अंतिम शब्द बोलते हैं वो इतने ज्यादा मेमोरेबल होने चाहिए कि वो एक इंप्रेशन ग्रैब कर पाए, एक इंप्रेशन लीव कर पाए, एक इंप्रेशन छोड़ पाए। एंड द लास्ट वन इज रिमेंबर नॉट टू इंट्रोड्यूस न्यू पॉइंट्स एट द फाइनल स्टेज। किसी भी हालत में, इन एनी कंडीशन, it is purely restricted to introduce any new point which you never discuss in your complete presentation। किसी भी हालत में कोई भी ऐसा नया पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करना है जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में नहीं यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयरिंग आउटलाइन। आउटलाइन यहां पर यदि मैं गलत नहीं हूं तो ज्यादातर बच्चे समझते हैं अपने जनरल कॉन्वर्सेशन में भी यूज करते होंगे आउटलाइन। यार आउटलाइन प्रिपेयर कर देना इस ड्राफ्ट की या इस चीज की। आउटलाइन इज ऑल अबाउट समथिंग, मैं यहां पे एक छोटा सा वर्ड दे रहा हूं विच इज रिटन हियर इन रेड कलर। आउटलाइन इज अ काइंड ऑफ बाउंड्री लाइन। आप वो बाउंड्री लाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, you are preparing a kind of boundary line for your presentation, how much deep you will approach to, or how much close you will approach to your audience। आप कितना ज्यादा लिमिट तक जाएंगे। सपोज फॉर एन एग्जांपल, if a task is given to you to get something from the market, आपकी मदर, आपके फादर कोई ऐसा टास्क देते हैं कि आपको वो मार्केट से खरीद के लानी है कोई भी एक चीज। if you don't find that in the market, how many of you leave Mathura city to get that from Agra, Delhi, Faridabad or some nearby cities of Mathura? मैंने ये सवाल पूछा है, प्लीज आंसर टू योरसेल्फ। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सामान आपकी मदर या फादर ने मथुरा से मंगाया है, मथुरा की किसी मार्केट से मंगाया और आपको नहीं मिलता तो आप उसे छोड़ के दूसरे सिटी या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं मथुरा के इर्द गिर्द जो हैं? आप में से कोई भी नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज अ प्री डिफाइंड आउटलाइन गिवन टू यू। यदि आपको मार्केट में वो चीज नहीं मिलती, कम बैक टू होम। यू आर नॉट supposed to leave the district, you are not supposed to leave your city to get that good from other cities, yes or no? वही चीज, वही इंप्रेशन आउटलाइन का होता है। मींस हम अपनी बाउंड्री लाइन प्रिपेयर करते हैं और बाउंड्री लाइन हमें मदद करती है हम कितना डीप और कितना क्लोज जाते हैं। ठीक है, ओके। So an outline can be used as a final script to make presentation audience centered and finish within time। ये हमें मदद करती है अपने प्रॉपर टाइम में अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करने की और ऑडियंस के मतलब की प्रेजेंटेशन बनाने की। So an outline may include the following points। जब भी कभी हम आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं तो ये चीजें हमें मदद करेंगी। Give heading to lengthy phrases। यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन में लेंथी फ्रेजेस यूज कर रहे हैं तो वहां पर हेडिंग जरूर दीजिएगा। मेंटेन सब हेडिंग्स। आपको अपनी सब हेडिंग्स भी, मींस जो आपने मेन हेडिंग दी है, यदि आप एलैबोरेशन कर रहे हो तो उसमें सब हेडिंग्स आप बता सकते हैं, आपको बतानी चाहिए। इंक्लूड नोट्स विच इंडिकेट्स वेयर टू यूज विजुअल एड्स। इस तरीके के हैंडआउट्स आपके पास होने चाहिए। यू शुड हैव द नॉलेज और यू शुड प्रिपेयर दैट ऑन अ नोट, और you should memorize that where to use what kind of visuals, कहां पर किस कंटेंट के साथ आपको किस तरीके का विजुअल कब और कैसे यूज करना है। It's up to you whether to have the notes in your hands, whether to get that on a page in your hands, whether to memorize that in your mind. It's up to you, but it is very much must to decide the exact location at the exact place and time to use the visuals with the content. Next one is use transitional phrases such as in addition to, besides the, who।
आप अपने प्रेजेंटेशन में इन शब्दों का यूज जरूर करें जिनको ट्रांजैक्शनल फ्रेजेस बोलते हैं, जो मदद करते हैं चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन करने में. दीज ट्रांजैक्शनल फ्रेजेस कनेक्ट समथिंग विच यू सेड एंड समथिंग विच यू आर शेयरिंग लेटर. दो अलग अलग सेंटेंसेस को बीच में कनेक्ट करना इन ट्रांजैक्शनल फ्रेजेस का काम होता है. सो दो चीजें हैं, यदि आप इनके बारे में जानते हैं सो यूज दीज, नहीं जानते हैं सो ऐसा नहीं है कि इनके बिना प्रेजेंटेशन दी नहीं जा सकती. Is it clear? Okay. And the last point, decide certain tone, gesture, and posture to make to use making presentation more effective. प्रेजेंटेशन में ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस तरीके का जेस्चर, कौन कौन से टोन, किस तरीके की टोन, किस तरीके के पोस्चर आपको यूज करने हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप इस चीज को प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, आप इसको मगअप कर सकते हैं. वट एवर यू कैन डू टू हैव द पर्टिकुलर जेस्चर, हैव द पर्टिकुलर पोस्चर, टू शो द पर्टिकुलर गेट, टू यूज अ पर्टिकुलर टोन in your presentation. ये outline ही decide कराएगा. So this was all about the preparing outline. We are moving ahead to the next one. This is presentation delivery tool. Just one second. Okay. So point number 10, presentation delivery tool. There are some tools. हालांकि यहां पे इन टूल्स का मतलब औजार नहीं है, बट दीज ऑल आर डेल्ट एज टूल. ये सभी टूल्स की तरीके से ही डील किए जाते हैं. सो वी हैव 4 different kinds of tools which helps us to decide the presentation, to give the presentation more effectively, to leave a very much good impression on the audience, considered to be very much finest presentation. 4 tools हैं, one by one देखते हैं. First one is consideration of personal aspect, audience analysis, appearance and physical action, and the last one is use of voice. These are the 4 tools considered. These are the 4 tools considered to be as very much effective, very much important for all the presentations. किसी भी तरीके की presentations के लिए. तो one by one इनको समझते हैं. Consideration of personal aspects. Personal aspects, यदि मुझे अपने बारे में पता है, मेरे traits पता है, I know my qualities. So in that state, मेरी qualities, मेरी traits मुझे मदद करेंगी मेरी presentation को effective बनाने में. Like for an example, confidence is the personal aspect. मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है मुझे पता होना चाहिए. Sincerity, how sincere I am, how sincere I am. चलिए एक छोटी सी बात करते हैं. सिंसियरिटी को मैंने पहले भी समझाया था, मुझे नहीं पता whether I gave this example earlier or not, but it is coming to my mind right now. If there is a function in your house, how many of your relative take active participation to get the tasks done of that event, of that occasion? आप में से ज्यादातर लोगों के रिलेटिव्स बहुत ज्यादा इंटेंटिवली, बहुत ज्यादा इंटेंशन के साथ, बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ आपके टास्क जो उस फंक्शंस को पूरा करने में जरूरी हैं नहीं पार्टिसिपेट करते. दिस इज ऑल अबाउट द सिंसियरिटी. बट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लीव द सिंसियरिटी? आपको जो टास्क दिया गया बाय योर फादर, बाय योर ब्रदर, बाय समवन हु इज डूइंग और हु इज ऑथोराइज्ड टू कंप्लीट अ टास्क, आपको जो दिया गया आप उसे हर हालत में कंप्लीट करेंगे. यदि आपको बोला गया यू नीड टू गेट दिस फ्रॉम द मार्केट, आप मार्केट जाएंगे. इफ यू विल नॉट गेट दैट इन द मार्केट, यू विल कॉल टू द रिस्पेक्टिव पर्सन टू get that good, get the thing from where you will get the information from him or her. Yes or no? So this is a kind of sincerity. You perform that with the full efforts. आप कोशिश करते हैं, आपकी approach 100% होती है. That is sincerity, and this too is considered as personal aspect. Next one is thoroughness. Thoroughness हमने पहले भी डिस्कस किया था इन चारों के बारे में. Thoroughness, perfection. Perfection आपका उस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने का परफेक्शन किस लेवल का है. परफेक्शन इज ऑल अबाउट, सपोज देयर आर 4 students who are preparing for the final examination. All are at the same IQ level. It depends how much efforts a student is giving to be the first one. एक बहुत पुरानी कोटेशन यहां पर याद आ रही है, मुझे नहीं पता ये आपके लिए इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना. मुझे अच्छा लगेगा यदि इनमें से आप में से कोई भी इस बात को समझ पाए. ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी देर काम करते हैं, ये मायने जरूर रखता है कि आप कितनी देर वास्तविकता में काम करते हैं.
ओके सो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे भी इलैबोरेट करेंगे यदि जरूरत पड़ेगी तो. सो परफेक्शन इज वेरी मच मस्ट एंड कंसीडर टू बी एज अ पर्सनल एस्पेक्ट. एंड द लास्ट वन इज फ्रेंडलीनेस, आपकी मित्रवत व्यवहार, दैट इज कंसीडर टू बी एज अ पर्सनल एस्पेक्ट. कुछ लोग बहुत ज्यादा मित्रवत नहीं होते तो वो इतना ज्यादा इंप्रेशन भी नहीं छोड़ पाते. सो पर्सनल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये चारों पर्सनल एस्पेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं. सेकंड वन इज ऑडियंस एनालिसिस. इसके बारे में हमने पूरा का पूरा एक चैप्टर, पूरी स्लाइड समझी थी. ऑडियंस एनालिसिस विद रेस्पेक्ट टू द प्राइमरी एनालिसिस, जिसमें नंबर ऑफ ऑडियंस, gender of audience, interest of audience, background of audience, age of audience, etc. There are a lot many things which we need to consider as an analysis of audience. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And the second one is analyze audience attention during the presentation. As a tool, as a second tool, audience analysis में जिस समय आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, when you are giving your presentation, उस समय ऑडियंस का अटेंशन कैसा है. It is your duty. No one else is coming to you. No one else is coming to the stage to let you know this. The audience is not interesting. Audience is not showing interest. No one is coming to you. You have to understand with the reactions of the audience then and there on the stage. आपको खुद ही समझना पड़ेगा. So two things: primary analysis and analysis audience attention on the stage while giving the presentation. The third point, appearance and physical action. So कैसे आप दिखते हैं, appearance and physical action, आप किस तरीके का movement वहां पर शो करते हैं. सो इसके अंतर्गत क्या आता है, कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट. आपका कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट आसपास का कैसा है, ये आपके अपीयरेंस पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, आपके प्रेजेंस पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है. पर्सनल अपीयरेंस, आप खुद किस तरीके से प्रिपेयर होके आए हैं, आप किस तरीके के जेस्चर शो कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पोस्चर्स यू आर गिविंग एज अ पोज टू द ऑडियंस. आपका गेट कैसा है. यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे. GAIT, गेट इज समथिंग विच शोज द मूवमेंट ऑफ समवन. जो लोगों का मूवमेंट, यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर चाल से चलता हूं. यहां पे एक बहुत अच्छी बात याद आई है, ज्यादातर लोग अक्षय कुमार की चाल को पहचानते होंगे. मोस्ट ऑफ यू लाइक नो हाउ अक्षय कुमार मूव्स. एक्चुअली जो उसका चलने का ढंग है उसको गेट बोलेंगे. उसका एक अपना गेट है. ही हैज मीन्स द अक्षय कुमार हैज इट्स ओन गेट. सो दिस इज ऑल अबाउट समथिंग, movement of someone. And the last one is facial expression, something which we expresses on face as feeling or emotion. जो हम अपने चेहरे पर इमोशन और फीलिंग की तरीके से शो करते हैं, that is appearance and physical action. Just one second. Okay, so we are moving to the next slide. Sorry, the fourth point, which is still rest as a delivery tool, which is use of voice. और यूज ऑफ वॉइस के बारे में हमने पहले भी जाना था. द पिच यू आर यूजिंग, द पिच वेरिएशन, द पिच यू आर यूजिंग इन योर प्रेजेंटेशन, द स्पीकिंग स्पीड you are using in your presentation, voice modulation which you are giving, the modulation which you are giving to the voice, the articulation which you are doing, which you are giving, which you are showing to the words and sentences properly. And last one is voice quality. ये सारी की सारी चीजें मिलके वॉइस के फीचर्स को इलैबोरेट करती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं, इंप्रेसिव बनाती हैं. सो ये चार डिलीवरी टूल थे, जिनमें से पर्सनल एस्पेक्ट, द फर्स्ट वन ऑडियंस एनालिसिस, सेकंड वन अपीयरेंस एंड फिजिकल एक्शन, थर्ड वन एंड यूज ऑफ वॉइस, फोर्थ वन. आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 11, ऑडियो विजुअल एड्स. ऑडियो विजुअल एड्स मींस द एड्स which are with respect to the sound and visual effects. जो visual effects और sound effects के अंतर्गत हमारी समझ को बढ़ाते हैं. Those are audio visual aids. इसको लेके चलते हैं. It helps to make presentation more interactive. Audio visual aids interactive बनाते हैं सेशन को. आपको यदि याद होगा, बहुत पहले जब मूवीज बननी चालू हुई थी इंडिया में, उस समय मूक यानी कि म्यूट मूवीज चलती थी, उसमें आवाजें नहीं होती थी. देयर इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्शंस ओनली. वहां पर एक्शन डेमोन्स्ट्रेट किए जाते थे, वो कुछ हद तक चीजें एक्सप्लेन करती थी. धीरे धीरे उसमें आवाजें डाली गई तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस, या ऐसा समझते हैं इसको, ऑडियो विजुअल एड्स को ऐसा समझ सकते हैं, इफ यू आर लाइक गेटिंग द साउंड not matching to the movement of the lips of the character in a movie, आप उस मूवी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उस मूवी को समझने में. यदि आप किसी मूवी को देख रहे हैं एंड साउंड इज नॉट मैचिंग विद द मूवमेंट ऑफ द लिप्स ऑफ द कैरेक्टर, वो जो मूवमेंट हो रहा है लिप्स का, चेहरे का, एक्शंस का, वो मैच नहीं कर रहा है विद द साउंड, आप उसको कंफर्टेबली नहीं देख पाते.
The same is audio-visual aids, which leaves a kind of addition. It helps to make the presentation more effective. One by one देख के चलते हैं. The first one is integrate the aid with oral presentation. जो आप मदद ले रहे हैं ऑडियो विजुअल की, प्लीज मिक्स दैट एड विद योर ओरल प्रेजेंटेशन. जो आप बोल रहे हैं उसके साथ उस ऑडियो विजुअल इफेक्ट को ऐड कीजिएगा, मिक्स कीजिएगा, वो आपको मदद करेगी. दैट विल हेल्प टू मेक द प्रेजेंटेशन मोर इंटरैक्टिव. डिस्क्लोज चार्ट्स, पिक्चर्स, मैप ओनली व्हेन रेफरेंसिंग दोज. आप बिना चार्ट्स को, बिना पिक्चर्स को, बिना मैप को, बिना विजुअल्स को दिखाए यदि उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इट वुड बी अ फुलिश काइंड ऑफ एक्शन देयर ऑन द प्रेजेंटेशन, देयर ऑन द स्टेज. वो बहुत ज्यादा गलत होगा. तो जिस समय आप रेफरेंस कर रहे हो किसी चार्ट को, शो द चार्ट देयर. इफ यू आर शोइंग अ पिक्चर, इफ यू आर एक्सप्लेनिंग अ पिक्चर, इफ यू आर सेइंग समथिंग अबाउट द पिक्चर, यू शुड डिस्क्लोज द पिक्चर. देन अलग अलग उनको नहीं कर पाएंगे. थर्ड वन इज विजुअल एड मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेलेवेंट. जिस भी विजुअल एड को आप यूज कर, विजुअल मींस जो विजुअलाइज करा रहे हैं आप, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल हो. कॉम्प्रिहेंसिबल मींस ऐसा हो जो सामने वाले को समझ में, ऐसा ना हो जो समझ ही नहीं पा रहा. यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा. ज्यादातर लोग आर्ट गैलरी में नहीं गए होंगे, लेकिन जो बच्चे गए हैं, एंड इफ दे विजिटेड दैट आर्ट गैलरी, मॉडर्न आर्ट गैलरी, उस कंडीशन में ज्यादातर पेंटिंग्स बच्चों को समझ में नहीं आती. बच्चे क्या, बच्चों के पिताजियों को समझ में नहीं आती, बिकॉज दे डोंट हैव दोस गट्स, दे डोंट हैव दैट नॉलेज ऑफ आर्ट. तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता. उसको उस आर्ट गैलरी में वही ज्यादा समय बिताता है जो उन चीजों को समझ पाता है. कॉम्प्रिहेंसिबल होता है, कॉम्प्रिहेंसिबल होती हैं जब चीजें उसके लिए और रिलेटेड होती हैं. सो दैट इज विजुअल एड मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिबल एंड relevant. Relevant is all about related to. Next one is interpret visual aids with your viewpoint. कभी कभी ऐसा होता है जो विजुअल एड आप दिखा रहे हैं वो आपके हिसाब से कुछ और कह रही है और सामने वाला उसको कुछ और समझ सकता है. So it is must to explain the visual aid to make the audience reach at the same level of understanding. ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑडियंस को आप उसी लेवल पर समझाएं, उसी लेवल पर लेके आए जिस लेवल से आपने उस विजुअल एड को समझा है या जिस लेवल पर आपने उस विजुअल एड को यूज किया है. नेक्स्ट वन इज स्टैंड एट द साइड विच डेंट हिंडर द व्यू. जब आप विजुअल शो कर रहे हैं उस बीच में आप हिंड्रेंस ना बने ताकि सामने वाले को साफ साफ रिलेट हो पाए. एंड द लास्ट वन इज यूज बोर्ड टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव. यदि जरूरत पड़े तो बोर्ड का यूज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है. सो दिस वाज ऑडियो विजुअल एड्स. नेक्स्ट वन इज आगे बढ़ते हैं, 11.1 की कैटेगरी में आता है. पॉइंट टू कंसीडर बिफोर सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ विजुअल. कुछ पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं विजुअल्स को सेलेक्ट करने के लिए. सो विजुअल्स आर टू बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मैसेज. जैसा मैसेज हो विजुअल्स वैसे ही सेलेक्ट किए जाते हैं. वन अनदर फैक्टर विच डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ विजुअल इज द साइज ऑफ ऑडियंस. हम हर तरीके का विजुअल नहीं शो कर सकते, हर तरीके के डिफरेंट साइज ऑफ ऑडियंस के लिए. यदि ऑडियंस बहुत ज्यादा है, इफ द ऑडियंस इज मोर देन 5,000, 4,000, 10,000, you cannot like show a visual even on the biggest screen, क्योंकि वो रीचेबल होगा ही नहीं 4,000, 5,000, 10,000 लोगों को. वो बहुत ज्यादा माइन्यूट, टाइनी हो जाएगा. सो हम उसी के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग अपने विजुअल्स को डिसाइड करते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग विजुअल्स. कभी कभी विजुअल्स को प्रिपेयर करने की जो कॉस्टिंग होती है वो भी वैल्यूएबल होती है, बिकॉज कॉस्टिंग तो यूज हो ही रही है उसमें. मैं उन विजुअल्स की बात कर रहा हूं जो आप एक्सटर्नल सपोर्ट के तौर पे यूज करते हैं. एंड द लास्ट वन इज टाइम रिक्वायर्ड. आई एम मूविंग हियर, आई एम टू दिस पॉइंट. टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग विजुअल्स. विजुअल्स को प्रिपेयर करने में कितना समय लग रहा है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ विजुअल्स आर टेकिंग टू मच ऑफ टाइम टू प्रिपेयर इट, आप अपनी खुद की प्रिपरेशन रेडी नहीं कर पाओगे. यू विल प्रिपेयर ओनली विजुअल्स, और विजुअल्स कभी भी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव पूरी तरह नहीं बनाते. दे एड देयर सपोर्ट, इसलिए विजुअल एड बोलते हैं. वो मदद करते हैं, वो प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन नहीं करते. सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स जो हमें पहले डिसाइड करने चाहिए विजुअल से पहले. एंड सेलेक्टिंग द राइचस विजुअल. नीचे कुछ तरीके दिए हुए हैं किस तरीके का विजुअल कहां और कैसे यूज करना चाहिए, इसको लेके चलते हैं. इफ यू हैव टू प्रेजेंट डिटेल्स एंड एग्जैक्ट वैल्यू, टेबल्स आर बेस्ट टू यूज एज विजुअल. मैं दोबारा बोल रहा हूं, यदि आपको किसी डिटेल को प्रेजेंट करना है, एग्जैक्ट वैल्यू को प्रेजेंट करना है, तो टेबल्स आर द बेस्ट. टू इलस्ट्रेट ट्रेंड्स ओवर टाइम, समय के ऊपर किसी ट्रेंड को इलस्ट्रेट करना है तो लाइन चार्ट इज बेस्ट. टू शो फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन, यदि फ्रीक्वेंसी यानी कि गतिविधि रेगुलर बेसिस पे जो होती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति वैसे बोलते हैं इसे. टू शो फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूज पाई चार्ट. पाई चार्ट
Pie charts are best to show the frequency and distribution. To compare one item with another, bar charts are the best. To compare one part with whole, pie charts again the best. To show correlation, यूज लाइन बार और डॉट चार्ट. डॉट चार्ट और लाइन चार्ट कोरिलेशन को शो करने में बहुत अच्छे होते हैं. एंड टू शो जियोग्राफिक रिलेशन, मैप्स आर बेस्ट. जियोग्राफिक रिलेशन को शो करने के लिए मैप्स बहुत अच्छे होते हैं. एंड द लास्ट वन इज टू इलस्ट्रेट ए प्रोसेस और अ प्रोसीजर. किसी प्रोसेस या प्रोसीजर को इलस्ट्रेट करना हो तो फ्लो चार्ट, डायग्राम बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं. सो दीज आर few objectives achieved by some different kinds of visuals. आगे बढ़ते हैं. manner of delivery. manner, यहां पे एक वर्ड दिया हुआ nuance. Actually manner और nuance are the same. manner means वो छोटा सा तरीका, वो महीन सा तरीका जो डिलीवरी में बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देता है. So a good planning is the backbone of presentation and using a way is the final success. जब आप प्लानिंग करते हैं उस कंडीशन में जो तरीका आप अपनाते हैं उस प्रेजेंटेशन देने का, वही आपको फाइनली सक्सेस दिलाता है. सो मैनर ऑफ डिलीवरी इज इक्वल और परहैप्स मोर इंपॉर्टेंट, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ओनली वन थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. सारी चीजें कॉमनली पार्टिसिपेट करती हैं, कॉमनली कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी एक प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने में. सो फॉलोइंग आर द मैनर मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन. इम्प्रॉम्प्टू हम बात कर चुके हैं, वेयर यू आर नॉट गिविंग अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन. मेमोराइजिंग मेथड, where you are memorizing few points, key points to deliver a presentation. Manuscript, where you are keeping the complete manuscript with you. And extemporaneous, where you are given time in advance, you have enough time to prepare the presentation. So this was all about the manner of delivery. आगे बढ़ते हैं. preparation to speak, बोलने की तैयारी कैसे करनी है. सो फॉलोइंग आर 9 ways. We have 9 different ways to overcome anxiety and feel more confident for a presentation. So preparation, बोलने की तैयारी के लिए 9 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. These 9 things are very much important to prepare in advance to speak. Speak वो प्रेजेंटेशन में हो सकता है, स्पीच वो क्लासरूम प्रेजेंटेशन में होता है, स्पीक वो पब्लिक स्पीकिंग में हो सकता है, स्पीक वो डिलीवरिंग का लेक्चर हो सकता है, वो हर जगह हो सकता है. सो दीज 9 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ओवरकम एंग्जाइटी जो ज्यादातर लोगों को फील होती है, एंड टू इंप्रूव द कॉन्फिडेंस. The first point is prepare more material than necessary or gain more knowledge. जितना ज्यादा आप मटेरियल को रेडी कर पाएं, जितनी ज्यादा नॉलेज ले पाएं, जितना ज्यादा नॉलेज आप ग्रैब करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. यू विल नॉट लैक, यू विल नॉट फील ब्लैंक विद द थॉट्स, विद द आइडियाज, इफ आस्क्ड, इफ स्टॉप्ड इन बिटवीन. आप कभी हारेंगे ही नहीं. आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी. यू विल एलैबोरेट मोर एंड मोर अबाउट दैट. Next one is rehearse in front of a mirror, delivery to your group of friends or deliver to your group of friends. जितना ज्यादा रिहर्स कर पाओगे बोलने का, उतना ज्यादा आपकी एंग्जाइटी दूर होगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. थिंक पॉजिटिवली. जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, ज्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं, मेरी कैसी परफॉर्मेंस जाएगी, कैसा क्या होगा, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी. एंड यस, थिंकिंग अबाउट अ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है. बट थिंकिंग नेगेटिवली, दैट इज नॉट गुड. नेक्स्ट वन इज द पॉइंट नंबर 4, विजुअलाइज योर सक्सेस टू ओवरकम नर्वसनेस. आप अल्टीमेटली ये सोचें कि आपकी सक्सेस क्या है. यू शुड थिंक अबाउट द सक्सेस व्हिच यू थॉट ऑफ बिफोर गिविंग द प्रेजेंटेशन. यदि आप ऐसा सोचेंगे अपनी सक्सेस के बारे में, विजुअलाइज कर पाएंगे उसे, तो आप अपनी नर्वसनेस को दूर कर पाएंगे. डीप ब्रेथ हेल्प्स टू कंट्रोल वर्ड्स. जितना ज्यादा कंट्रोल्ड ब्रेथ आप लेंगे, मीन सांस जितनी ज्यादा कंट्रोल लेंगे, उतना ज्यादा कंट्रोल आपका शब्दों पर दिखेगा. बी रेडी टू स्टार्ट. हमेशा रेडी रहना चाहिए. बी रेडी टू स्टार्ट एंड बी कंफर्टेबल. ये हमारे पॉइंट नंबर 6 और 7 थे, 5 और 6. सो बी रेडी टू स्टार्ट एंड बी कंफर्टेबल. जितना ज्यादा आसान हो, जितना ज्यादा ईज फील कर पाए. एंड पॉइंट नंबर 8 एंड 9, डोंट पैनिक. पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं. एंड कीप गोइंग ऑन. अल्टीमेटली यू नीड टू पुश योरसेल्फ. ज्यादातर लोग अपने आप को पीछे ढकेलते हैं ताकि वो उस चीज को अटेम्प्ट ही ना कर पाए. सो कीप गोइंग ऑन, पुश योरसेल्फ टू अचीव समथिंग व्हिच यू प्रिपेयर्ड, व्हिच यू थॉट ऑफ, व्हिच यू सेट एज अ टारगेट इन योर लाइफ. सेट एज अ target before giving a presentation or before appearing in any
new activity. So these were few points to prepare in advance to speak. Next point is overcoming stage fear. Stage fear को overcome कैसे किया जाता है? Following are few tips which will help you out to overcome stage fear. Stage fear हर किसी को होता है. यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा. कोई भी बच्चा यदि सोचे कि जिस भी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद यदि वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है. दुनिया में हर कोई, everyone shows the subtle difference to the breath. हर किसी को फील होती है वो ब्रेथ में अनकंफर्टेबिलिटी, डिस्टर्बेंस, हर किसी को फील होता है जब वो स्टेज पर जाते हैं. इवन व्हेन दे आर वेरी मच परफेक्ट टू डिलीवर दोस ऑल, तब भी उन्हें फील होता है, दे फील अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस, उनको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए वो थोड़ा सा कंफर्टेबल शो होते हैं. ओके, वन बाय वन लेके चलते हैं. दीज आर फ्यू टिप्स व्हिच विल हेल्प अस टू ओवरकम स्टेज फियर. द फर्स्ट वन इज शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर फियर टू योर ट्रू पर्पस. आपका जो उद्देश्य है, यदि आप अपना फोकस उस उद्देश्य की तरफ कर लेंगे तो आपका डर अपने आप ही दूर हो जाएगा. मींस यू आर देयर टू अचीव द पर्पस इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट द फियर. Fear is something which comes in between and purpose is something which comes at the end. बहुत ज्यादा सिंपल है. पर्पस को ध्यान दीजिएगा, बीच वाली चीजें ध्यान में आएंगी नहीं. सेकंड पॉइंट इज स्टॉप स्कैरिंग योरसेल्फ विद थॉट्स अबाउट व्हाट माइट गो रॉन्ग. किसी भी हालत में अपने आप को, ज्यादातर लोग होते हैं यार गलत चला जाएगा, या ये गलत हो जाएगा, यदि वो गलत हो जाएगा. सो डू नॉट थिंक अबाउट दैट इन एनी स्टेट. किसी भी स्थिति में, किसी भी लेवल पर आप यदि सोचने लगेंगे, स्कैरिंग मीन्स यू विल स्केयर योरसेल्फ अबाउट द थॉट्स where you are thinking regularly what might go wrong, what I will do wrong. No, do not think about that. This is the second step to overcome stage fear. The third one is refuse to think thoughts that create self doubt and low confidence. यदि कोई भी ऐसा थॉट आपके दिमाग में आ रहा है जो सेल्फ डाउट, अपने आप पर, अपने ऊपर डाउट क्रिएट कर रहा है, या आपका लो कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, तो उसको जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी रिमूव कर देना चाहिए दिमाग से. उसको रिफ्यूज कर देना चाहिए, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस वेज टू calm एंड रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी. उन तरीकों को अपनाइए जो आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें. और देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं. एक्सरसाइज रिलैक्स कराती है, मेडिटेशन माइंड को रिलैक्स कराता है. सो देयर आर लॉट मेनी वेज. ईट वेल एंड प्रैक्टिस अदर हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट. बहुत सी ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, आपकी बॉडी को कंट्रोल करती हैं. सो प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज यूज दोज ऑल हेल्दी लाइफस्टाइल. अवॉइड कैफीन आप सभी लोग जानते हैं जो कॉफी में होता है, सो चॉकलेट्स में भी होता है. सो ज्यादा कैफीन न कंज्यूम करें. ज्यादा निकोटीन तो होना ही नहीं चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए. अल्कोहल तो बहुत ज्यादा अवॉइडेड है, अल्कोहल. चलिए, नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन द स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी. फोकस ऑन द स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, मैंने पहले भी बोला था, अपने पर्सनल एस्पेक्ट्स जो हैं उनके बारे में सोचिए. आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं एंड आपकी एबिलिटी क्या है. इफ यू आर एबल टू फोकस ऑन योर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ्स, यू विल बी एबल टू डिलीवर एवरीथिंग. यू विल बी एबल टू क्रॉस एनी डिफिकल्ट पाथवे. नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअलाइज योर सक्सेस. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जितना विजुअलाइज करेंगे अपनी सक्सेस को, उतना ज्यादा कंफर्टेबली अपना स्टेज फियर दूर कर पाएंगे. प्रिपेयर योर मटेरियल इन एडवांस एंड रीड इट लाउड. जितना ज्यादा मटेरियल एडवांस पर प्रिपेयर कर पाओगे और उसे लाउडली रीड करोगे, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा बिफोर द प्रेजेंटेशन, नॉट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन. यदि आप उसे लाउडली बोलेंगे तो आपको रीड नहीं करना है. आपको रीड करना है सिर्फ तब जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बिकॉज दैट इज द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग समथिंग. नेक्स्ट वन इज बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, रिमेन वार्म एंड मेक आई कॉन्टैक्ट. बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक शो करें और रेगुलरली मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस. जिनके साथ भी आप बैठे हैं, जिनके साथ भी आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, एक आई कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एंड अल्टीमेटली द लास्ट वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is the 10th one. Be natural and be what you are. Do not try to adopt the things which you liked in other. आप उन चीजों को लाइक कीजिएगा which are good as a ability, as a quality in you. Okay? So do not chase others. यदि उनकी क्वालिटीज अच्छी हैं तो you can adopt कर सकते हैं, but do not focus on those only. आपको अपनी एबिलिटीज, अपनी खासियत ध्यान में रखनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. Stage fear leaves physiological impression. हम सभी लोग जानते हैं यदि स्टेज फियर किसी को भी होता है तो फिजियोलॉजिकल मींस शारीरिक तौर पर वो इंप्रेशन दिखते हैं. सो
Here are some simple ways to overcome it. उन physiological impressions को overcome करने के कुछ तरीके हैं. The first one is relaxation technique. Adopt some relaxation technique. Means relaxation technique जो आपकी body को relieve करती हैं. Relaxation, breathe करना, control करना, silently बैठना. Exercise. Do healthy exercise to reduce stress. जितना ज़्यादा stress होगा उसको दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है आप एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज से आपके स्ट्रेस दूर होगा. ब्रीथ डीपली. ये सांस जितना अच्छे ढंग से, जितना डीपली आप लेंगे उतना ज्यादा आप कंट्रोल फील कर पाएंगे. प्रैक्टिस. मास्टर द एक्टिविटीज बाय प्रैक्टिसिंग. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को मास्टर कर पाएंगे उस चीज में. फिजियोलॉजिकल इंप्रेशन दूर कर पाएंगे उतना ज्यादा स्टेज फियर की वजह से. डाइट. जितना ज्यादा डाइट कंट्रोल रखेंगे उतना ज्यादा भी अच्छा होगा, बिकॉज हेल्दी डाइट हेल्प्स यू आउट टू मेक योर बॉडी हेल्दी. एंड लास्ट वन इज वाटर. ड्रिंकिंग वाटर बिफोर द परफॉर्मेंस. जितना अच्छा पानी पिएंगे, मैं रेगुलरली बीच बीच में जो 1 सेकंड मांगता हूं उस समय पानी पीता हूं. जस्ट 1 सेकंड ओनली. So thank you. So drinking water is very much important. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो कंट्रोल रखता है आपके मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ द ब्लड, मूवमेंट ऑफ समथिंग विच इज़ मूविंग इन योर बॉडी रेगुलरली टू शो द शिवरिंग, टू शो द अनवांटेड एक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉज टू स्टेज फियर. स्टेज फियर के कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, वन बाय वन जानते हैं, और ज्यादातर लोग आप इसको जानते हैं. मोस्ट ऑफ यू नो दिस. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सभी लोग जानते हैं स्टेज फियर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का नतीजा होता है. बीइंग अनप्रिपेयर्ड. यदि आप प्रिपेयर किए ही नहीं है किसी चीज को, ऑब्वियस है स्टेज फियर आएगा. व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, यू प्रिपेयर्ड समथिंग इन एडवांस प्रॉपर्ली विद प्रॉपर टाइम, आपको स्टेज फियर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा. परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है कि कुछ लोगों को ओके परफॉर्म करूंगा, कैसे करूंगा, कहां से स्टार्ट करूंगा, कहां एंड करूंगा, हाउ टू मूव ऑन टू द इनिशियल स्टेज टू द एंड, हाउ टू मूव ऑन द प्रोसेस, हाउ टू अडॉप्ट द स्टाइल. सो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, देयर इज अ फीचर, देयर इज अ थिंग, देयर is a wrong thing. There is something which is considered as negative activity. So performance negative thing. Performance anxiety जितना ज्यादा होती है उतना ज्यादा स्टेज फियर बढ़ता है. फीलिंग ऑफ स्पीचलेसनेस. कुछ लोग बीच में भूल जाते हैं, वो इस वजह से होता है. हम सभी लोग जानते हैं स्पीचलेसनेस, बोल नहीं पाते हैं. आपने कई बार ऐसे लड़के देखे होंगे जो स्टेज पे आने के बाद उनसे कुछ पूछा जाता है, वो मुंह साइलेंट कर लेते हैं. दे नेवर स्पीक एनीथिंग. स्पीचलेसनेस शो करते हैं. सो उसका कारण भी होता है वो अपने आप को कॉन्फिडेंस तो लो शो ही कर रहे हैं, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी शो कर रहे हैं, साथ में स्पीचलेसनेस और एक्सप्रेस कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज फॉरगेटिंग द फोकस. अपना फोकस फॉरगेट करना भी, मतलब अपना फोकस, अपना टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव भूल जाना भी स्टेज फियर को अट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज बॉडी लैंग्वेज एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड. देखते हैं, 2 स्लाइड ही बची हैं. बॉडी लैंग्वेज में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द लैंग्वेज ऑफ बॉडी इज बॉडी लैंग्वेज विच इंक्लूड्स जेस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन. ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं. सो बॉडी लैंग्वेज इज ऑल अबाउट समथिंग विच हेल्प्स यू आउट. विच हेल्प्स यू आउट टू मेक योर प्रेजेंटेशन, मेक योर वर्ड्स मोर इंपॉर्टेंट. हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि बॉडी लैंग्वेज 55% अटेंशन ग्रैब करती है ऑडियंस के इंटरेस्ट का. सो अच्छा, यहां पर लिखा भी है, इट टेक्स 55% टू कंप्लीट कम्युनिकेशन. सो इट प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल टू डिलीवरी स्पीच और लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन. सो बॉडी लैंग्वेज हम पहले भी जान चुके हैं, सो इसको ज्यादा ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज टाइम डायमेंशन. व्हाट दिस टाइम डायमेंशन इज ऑल अबाउट, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू टाइम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट वर्क प्लेस और स्टेज इज टाइम मैनेजमेंट. जितना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट आप प्रिपेयर कर पाएंगे, मीन्स इफ यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, you are to decide everything with respect to the time. यदि आप कहीं पर भी टाइम से दाएं या बाएं जाएंगे, आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर पाएंगे, बिकॉज you are not like a bunch of knowledge, a source of knowledge. So at that point,
at that point you will find uncomfortability. मैं एक बात कहता हूं, a person who is very much expert in his or her area, वो 1 घंटे अच्छा लेक्चर दे सकता है, 2 घंटे अच्छा लेक्चर दे सकता है, 4 घंटे दे सकता है, 6 घंटे दे सकता है. Is it possible for him to deliver the lecture completely for 24 hours? It's impossible. ऐसा हो ही नहीं सकता, because उसको भी uncomfortability होगी. How long he can go on to explain the study? How long he can go on to elaborate something as a subject and knowledge? वो भी इस लेवल तक नहीं हो पाता, क्योंकि अल्टीमेटली उसे ये भी देखना है कि सामने वाला कितना समझ पा रहा है. How much someone is like taking as a source, taking as a knowledge, receiving as a knowledge. So that too is important. This helps, means time management helps speaker to maintain relationship within the stipulated time. Time management होता है, एक particular relationship establish हो पाता है ऑडियंस के बीच में और प्रेजेंटर के बीच में. एंड लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन बिकम्स मोर इंप्रेसिव इफ आवर्स एंड सेकंड्स मैनेज प्रॉपर्ली. यदि हर एक सेकंड, हर एक मिनट प्रॉपर्ली मैनेज्ड है तो बहुत इजीली ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से टाइम मैनेजमेंट हो पाता है, वो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो पाती है. सो टाइम मैनेजमेंट टू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन. एंड द लास्ट वन इज which we have already gone through earlier as well, paralinguistic features, means all those features which acts as language but never considered as language. जो language की तरीके से माने जाते हैं मगर language होते नहीं हैं. That is tone, means way of speaking. हम कैसे बोलते हैं? Pitch, variation of speaking. हम जैसा variation देते हैं, it is considered to be a speech signature of someone. Volume means audibility, how audible you are to the audience. Rhythm, we understood that earlier as well. Frequency which you are giving to the sentences, to the speech, that is rhythm. Intonation means rise and fall of the voice in speaking. बहुत छोटे से शब्दों में मैंने शायद पहले समझाया था कि नहीं समझाया था, मगर अभी याद आ रहा है. किसी भी affirmative, assertive सेंटेंस को यदि आप इस तरीके की टोन यूज करके इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो वो भी इंटोनेशन कहलाता है. सो दैट इज पैरालिंग्विस्टिक फीचर. एंड द लास्ट वन इज आर्टिकुलेशन, वे टू पुट आर्टिकुलेटर्स टू प्रोड्यूस साउंड. उस तरीके से अपने आर्टिकुलेटर मींस उन हिस्सों को मुंह के अंदर, उन पार्ट्स को जो आवाज को, शब्दों को प्रोनाउंस करने में मदद करती है, उन सभी को प्रॉपरली आर्टिकुलेट करना. मैं हमेशा बोलता हूं जब भी कभी आप बोल रहे हैं, यू आर सपोज टू open your mouth. You are supposed to take the help of your tongue, your palate, your teeth, your lips, your vocal cord, your windpipe. These all things must be properly used by everyone while speaking. यहां पर मैं जो प्रेशर दे रहा हूं to every word, मेरा मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. So these were the paralinguistic feature, and this is the end. These are few questions which are with your notes which are shared on your emails, and this is the last one. Thank you very much at the end. So we will meet again in our next video with the unit 4. Okay, one thing at the end again, I'm focusing, I need the attention of every one of you on this point. Please leave your comments regularly. चाहे आपको डाउट हो या ना हो, आपके कमेंट्स मुझे ये बताते हैं. योर कमेंट्स हेल्प्स मी आउट टू अंडरस्टैंड हु ऑल हैव गॉन थ्रू द वीडियोस. कितने लोग वीडियोस को गो थ्रू कर चुके हैं, मुझे पता चलता है इससे. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का सब्सक्रिप्शन पता करने के लिए, नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे होंगे. सो प्लीज डू दैट सो दैट यू कैन गेट टू नो about this notification of my next video. Bye bye, take care, be safe and protective against this coronavirus. I really do expect a healthy life and very much normal life in coming few days. Okay, bye bye, take care everyone.